Hello friends, welcome. This video I am making for the friends who are not from electrical side but they want to know about multimeter, and this multimeter is useful for household small checking correction in electrical or battery related circuits. So I will not be giving you the deep detail of components and the circuitry measurements, but I will give you the methods how you can use this multimeter in your home for small uses, and you should not be depending and wondering how other people use this multimeter. So simply, if you see this multimeter here, one this knob is there in the meter which can rotate and you can fix on different ranges. This is the LCD where you get the readings and indications. So here one block indicates DC voltage, and DC voltage is from range, different ranges are there: 200 milliamps, 2000 milliamps, 20 volt, 200 volt and 1000 volt. Similarly, if you go this side, so this is AC voltage. Here it is 200 volt and 750 volt. Here ampere ranges are there: 200 milliamps, 20 milliamps and 2000 microamps. Then one more setting is there for 10 ampere. This 10 ampere range is there specifically with the red color, and then we have one continuity test point, and then we have range for ohms, that is resistance measurement. So in resistance measurement you have 100 ohms, 2000 ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms and 2000 kilo ohms. So we will see how this can be used for a small purpose. The simple purpose, say this is the dry cell around 1.5 volt, we all know we use it. So you want to check whether this is correct, perfect working condition or not. So here I have put this black probe in the bottommost common point and another red color probe in the just above the black one, and we have not used this, the third one, the top one, that is for 10 ampere, we normally do not use. So here this black is your negative probe and red is the positive probe. In this cell, this negative I will put here on the bottom side, and this positive side we will put this voltage DC I have set on 20 volt. So let us see what is the reading. So reading is coming 1.7. You can read 1.7. अब हम एक 9 वोल्ट बैटरी है ये, और 9 वोल्ट बैटरी को हम टेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें कितना वोल्ट है, ये ठीक है कि नहीं है। तो इसको हम 20 वोल्ट पे ही रखेंगे, DC 20 वोल्ट। अब इसमें ये जो है इसको मैं लगाता हूँ, तो ये 6.3 वोल्ट 6.2 वोल्ट करीब दिखा रहा है। अब ये क्या हुआ है कि ये नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव साइड लगाया, पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव साइड लगाया, इसलिए ये सही रीडिंग दे रहा है। अगर मैं उल्टा लगा दूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस साइन आता है,
तो ये नहीं होना चाहिए, ये माइनस साइन दिखा रहा है कि हमने उल्टा लगाया, गलत लगाया है। इसको सही लगाइए और सही रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब एक हम रेजिस्टेंस लेते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू नाप के देखते हैं। तो ये मेरे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है, तो उसको नापने के लिए मैं ये 2000 ओम पे करीब रखता हूँ और इसको नापूंगा मैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, कहीं भी रख सकते हैं प्रॉप को हम। तो इस तरह से इसको नापेंगे तो ये करीब करीब 219 ओम्स आ रहा है। तो मार्केट में 220 ओम के नाम पे ये मिलते हैं रेजिस्टेंस इस तरह से। तो इनका एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती तो प्लस माइनस टॉलरेंस उसमें दिया जाता है। अब ये एक मेरे पास एलईडी है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कंटिन्यूटी टेस्टिंग या डायोड टेस्टिंग पे। इसमें एक इसका लेग जो है लंबा है, एक शार्ट है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। लंबे लेग यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रखूँगा मैं, ये नेगेटिव। अब ये देखिए एलईडी इसमें ग्लो हो रही है, मतलब ये एलईडी ठीक है। अगर उल्टा रखेंगे हम तो नहीं होगा, न इधर कोई रीडिंग आएगी। सीधा रखने से ही ये इस तरह से ग्लो होता है। अब यही पे हम इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करने का एक देखते हैं आइडिया। ये एक वायर है, ये प्लग है बना हुआ। अब ये हमें मालूम नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो एक हम इसका जो है ब्लैक के ऊपर में रख लेता हूँ, इस तरह से ब्लैक वायर पे रखा। अब मैं यहाँ पे कौन सा एक पॉइंट पे रखूँगा, मुझे मालूम नहीं कि कौन से पे ये ब्लैक वायर कनेक्टेड है। हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई रीडिंग इंडिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यस, यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है और एक सीटी जैसी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और ब्लैक वायर पूरा ठीक है, बीच में से टूटा हुआ नहीं है। हम रेड वायर को भी चेक कर लेते हैं। ये रेड वायर को मैं यहाँ पकड़ता हूँ ऐसे, और ये रेड वायर, ये देखिए ये इंडिकेशन आ गया। ठीक, तो ये हम इस तरह से इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। एक ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस को मैं इसमें लगा लेता हूँ ब्रेडबोर्ड में, ताकि इसको मैं आसानी से मेजर कर सकूँ। इसमें क्या होता है कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3। तो ये दोनों तो पावर सोर्स पे लग जाते हैं, बीच वाला पॉइंट जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये 10K लिखा है, मतलब 10 किलो ओम्स का ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम नापने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको मैं ओम्स पे रखता हूँ, ये 20 किलो ओम्स पे मैंने रखा है इसको रेजिस्टेंस की रेंज में। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये 9.5 9.4 रीडिंग आ रहा है, मतलब 9.4 किलो ओम्स का है। अब इसको मैं बीच में एक रखता हूँ, ये मिनिमम दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको वेरी कर लेते हैं। ये 3.1 किलो ओम्स दिखा रहा है, मतलब ये वेरी करने से बीच वाला पॉइंट का रेजिस्टेंस वेरी होता रहता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में उपयोग होता है। अब अगर इसको हम फुल घुमा दें तो इसका बीच वाला जो पॉइंट है वो भी 9.4 किलो ओम्स दिखाएगा और बाहर वाला पॉइंट भी 9.4 किलो ओम्स दिखाएगा, यानी ये मैक्सिमम पे हमने सेट कर दिया। और वैसे ही हम मिनिमम पे कर दें तो ये 0 करीब दिखाता है, जबकि आउटसाइड लगाएंगे तो 9.4 किलो ओम्स दिखाता है।
तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस नापने का तरीका। अब हम एक करंट कैसे नापा जाता है उसका एक तरकीब लगाते हैं। ये मैंने बैटरी ले ली। ये बैटरी का पॉजिटिव मैं यहाँ पॉजिटिव में लगा दे रहा हूँ ब्रेडबोर्ड के ऊपर, और ये नेगेटिव साइड जो है इसकी ब्लैक वायर ये नेगेटिव साइड में मैंने लगा दी। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव में लगाया, यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मीटर को हम सेट करेंगे एम्पियर नापने के लिए, तो मैं 20 मिली एम्प्स पे इसको अप्रॉक्सीमेट रख देता हूँ। ये मैंने एक वायर लगाया हुआ है इसके बैटरी के नेगेटिव साइड से। अब ये नेगेटिव साइड में मैं लगाता हूँ इसको, और रेजिस्टेंस पे हम इसको लगाएंगे तो हमको एक रीडिंग मिलेगी। तो ये 10 मिली एम्प्स की रीडिंग आ रही है, जो इस रेजिस्टेंस से 10 मिली एम्प्स करंट पास हो रहा है इस समय। तो इस तरह से, क्योंकि ये करंट जो है हमेशा सीरीज़ में नापा जाता है, तो हम इसको ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए ऐसा रखा है कि ये जब हम टच करते हैं तभी ये बैटरी का सर्किट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने करंट नाप के देख लिया। इसको रख देते हैं अलग। अब आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से उपयोग किया जाता है, कि ये एम्पियर का रेंज है, ये एसी वोल्टेज का रेंज है, ये डीसी वोल्टेज का रेंज है, ये रेजिस्टेंस का रेंज हो गया, ये कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए हो गया। और अब हम जो है ये मैंने एक पट्टी ले ली है इलेक्ट्रिकल की। अब इसका हम वोल्टेज नापेंगे। तो ये एसी वोल्ट हम यहाँ 200 वोल्ट है, बट घरों में सप्लाई 200 ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको 750 पे सेट कर देंगे। तो ये 750 पे मैंने सेट कर दिया। अब इसको मैं वोल्टेज को इसमें नापता हूँ। तो ये देखिए 237 to 35 इस रेंज में ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो हमारे घरों की सप्लाई को इस तरह से हम नाप सकते हैं कि ये कितना वोल्ट है। फिर से लगा लेते हैं 236 to 35 वोल्ट। तो इस तरह से मल्टीमीटर का उपयोग करके घरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे उपयोग के लिए, और ये वीडियो पूरा उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं रखते हैं, उनके लिए है कि छोटा मोटा अपना बैटरी का वोल्टेज या कोई कंटिन्यूटी, कहीं कोई वायर टूटा है चेक करना है तो उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको बताऊं, ये मेरे पास एक केबल है मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें ये 2 वायर लगे हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। ये कौन से टर्मिनल पे जाता है, ये रेड वाला यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है कि यहाँ लगा है, हमें नहीं मालूम, तो हमें टेस्ट करना है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ जा रहा है, तो उसको देखने के लिए हम इसको मीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए, और इनको टेस्ट करेंगे हम एक एक करके। तब ये मैं यहाँ रखता हूँ ब्लैक, और इसका यहाँ पे लगाया मैंने, तो ये कनेक्ट हो गया। आवाज़ भी आ रही है सीटी की, और ये मुझे 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है। अब दूसरा वाला पॉइंट को हम देखें, दूसरा वाला पॉइंट भी कनेक्टेड है। हम थर्ड वाला पॉइंट को देखें, ये कनेक्टेड है, मतलब
ये मैं इसमें थर्ड पॉइंट पे रखा हूँ यहाँ, और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही, मतलब ये शॉर्ट हो गया है कहीं पर अंदर। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। नॉर्मली आप इसको ऑफ़ करके रखिए, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, इस तरह की बैटरी लगी होती है, और बैटरी को बचाने के लिए और मीटर को बचाने के लिए ऑफ पोजीशन पे ही रखेंगे उसको। धन्यवाद। अब इस बारे में अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और किस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो वैसा बता दें, हम उस तरह का वीडियो आपको ज़रूर बना के देंगे। धन्यवाद।